Welcome back to my channel Chemistry का बच्चन. Hello my gingers and chilies. Today we are going to continue with the second lecture of group 16. As you can see it, I am going to teach you today only about O2, that is oxygen. We all have done, there are two allotropes of oxygen, one is called dioxygen and another is called trioxygen. Ozone we will do it in lecture number 3. So let's talk about oxygen. Everyone knows that the first element of every group 15, group 16, group 17, group 18, group 13, group 14 in P block mainly, not group 18, forget it. So group 13, 14, 15, 16, 17, they are called anomalous, abnormal elements, right? Due to 4 reasons. पहले भी बता चुका हूँ. So anomalous behavior of O2 is due to 4 reasons, जिसको वापस लिखना लिख सकते हैं. पहला small size, दूसरा highest electronegativity in the group, तीसरा highest ionization potential, and चौथा absence of D orbitals because they belong to second period. 2D होता नहीं है, सबको मालूम है. So that is anomalous behavior of O2. उसके बाद अगला क्वेश्चन उठ के आता है हर ग्रुप में, that how first element is different from other elements of the group. So same way over here, how O2 is different from other elements of group 16. So we all have to know mainly 4 points for theory, but entrance के लिए आपको जितने points मालूम होंगे अच्छा है. तो I have written all 6 whatever is there in the different textbooks. First one we all have to know is that in group 16 O2 is a gas. Oxygen gas है, otherwise all of them are solids. Sulfur, selenium, tellurium and polonium, all of them are solids. Okay. Point number 2, O2 we have done according to molecular orbital theory. It is what? It is paramagnetic in nature. Total अगर 10 हो number of electrons या total अगर 16 हो even number होने के बावजूद भी, they are called paramagnetic. ट्रिक दी हुई है मैंने, ठीक है. Other elements of the same group are diamagnetic. What is the meaning of paramagnetic? Unpaired electrons. Third, O2. So atomicity कितनी हो गई? 2. Other form complex molecules, and sulfur and selenium are octaatomic, S8 or Hc8. Oxygen का common oxidation state होता है -2. In peroxides it can show -1, but common is -2 only because its electronegativity is just next to fluorine. Okay, and other elements exhibit not only -2 but they also exhibit +2, +4, +6. I have proved that in my last lecture. जिन्होंने नहीं देखा देख लेना. Fifth point is, who is the hydride? Water. H2O, H2S, H2SC, H2TE and H2PO. So everyone knows water is a liquid. Why? Due to intermolecular hydrogen bonding. तो एक और point भी लिख सकते हो. The hydride, that is water, in group 16 is exhibiting hydrogen bonding while others do not. तो 2 points बना सकते हो यहाँ पे भी आप, but मैंने दोनों एक साथ रखे. So water is a liquid, others are gases. Which type of gases? Poisonous. This is colorless and odorless. This is poisonous gas, all of them. Okay, and second thing, it exhibits intermolecular hydrogen bonding while others do not. And last thing, as we all know, they would belong to period 2. So oxygen with carbon, oxygen with nitrogen is having a property to exhibit p-pi multiple bonding, which other elements cannot show. What is p-pi? P orbital of one element is going to form an overlapping with the p orbital of another with pi bond. What is pi bond? Everyone knows, the bond which is formed after sigma, that is double bond में एक pi bond और triple bond में 2 pi bond होते हैं. So I hope the initial part is clear to everyone. Let's go to the physical properties and uses first of O2. तो दोनों मैं साथ में करा रहा हूँ, physical properties and uses. Now let's talk about physical properties first. Colorless, odorless, tasteless gas, sparingly soluble in water. बहुत ही कम soluble होता है. Okay, if I say then it is going to be 30 centimeter cube per liter, but that is enough for aquatic animals to survive.
इतना भी बहुत हो गया फॉर एक्वेटिक एनिमल्स टू सर्वाइव. थर्ड थिंग, वी कैन liquefies O2 at somewhere 90.2 Kelvin. Okay, so you can see pale blue liquid, and this pale blue liquid is used as LOX is used as rocket fuel. या दोनों साथ में डाल दिया. So it is used as rocket fuel. LOX का मतलब होता है liquid oxygen. It is used as a rocket fuel, and that is pale blue liquid. Liquefies O2 at somewhere 90.2 Kelvin. फिर इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं जो कॉमन है, वो सबको मालूम है. 8O16, 8O17 and 8O18. This one is radioactive in nature. This is very common, so everyone knows that. Then we go for absorbed, very important point. Can be absorbed by alkaline pyrogallol. Pyrogallol जिसने पढ़ा हुआ है well and good, जिन्होंने नहीं पढ़ा उसके लिए बना रहा हूं. This is your pyrogallol. एक टाइप का फिनॉल है, बट 3 OH इसके साथ अटैच है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय एल्केलाइन पायरोगैलॉल. देन यू कम टू यूजेस. तो 5 आपको मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज आनी चाहिए. 5 वापस रिपीट करेंगे. सेकेंड वी गो फॉर यूजेस. तो ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, somewhere 2800 डिग्री सेल्सियस. ऑक्सी एसिटिलीन और इथिलीन फ्लेम भी लिख सकते हैं. ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम लिखते हैं. ओके, दैट इज समवेयर 3200 डिग्री सेल्सियस फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ मेटल्स. और भी बहुत सारे यूजेस हैं, बोलता है तो. सो लेट्स सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज यूजेस ऑफ इट. पहला पॉइंट क्या है? कलरलेस है गैस, ओडरलेस है एंड टेस्टलेस है. ठीक है. सेकेंड थिंग, वेरी लिटिल सॉल्युबल इन वाटर, दैट इज 30 cc और 30 ml पर लीटर. बट इज इट इनफ फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स टू सर्वाइव? यस, बहुत हो गया उतना. थर्ड पॉइंट, अगर आपको इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 90.2 केल्विन पे होएगा. एंड देन द कलर इज गोइंग टू बी पेल ब्लू लिक्विड. प्लीज रिमेंबर, सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, देन यू गेट द पेल ब्लू सॉलिड ओनली. ब्लू कलर का सॉलिड मिलता है, बट लिक्विफिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, 3 isotopes we have, 8O16, 8O17 and 8O18, जिसमें 8O18 is radioactive in nature. And it is absorbed by, absorbed मतलब सबको मालूम है, mainly absorption like moisture is absorbed by Kong H2SO4. Same way this O2 can be absorbed by alkaline pyrogallol. तो alkaline pyrogallol एक तरह का फिनॉल होता है, और इसका आयोपैक नेम जिसको लिखना आएगा अल्कोहल फिनॉल्स में, बेंजीन 1,2,3 ट्रायोल. ओके, जिसको लिखना है लिख सकते हैं. एज फार एज यूजेस आर कंसर्न्ड, आप नॉर्मल यूजेस भी लिख सकते हो. ऑक्सीजन इज यूज्ड इन स्क्यूबा डाइविंग, इट इज यूज्ड बाय माउंटेनियर्स, इट इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल ब्रीदिंग, ओके, इन हॉस्पिटल्स एंड ऑल. एंड O2 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव. इवन फॉर ग्रीन प्लांट्स इट इज बीइंग रिक्वायर्ड. ठीक है, तो सबके लिए जरूरत है. एज फार एज 2 famous uses which I have written on the board is LOX में liquid oxygen as a rocket fuel, and oxyhydrogen flame and oxyacetylene flame temperatures लिखे हुए हैं, are used mainly for cutting and welding of metals. ठीक है. Then oxygen is used in preparation of many compounds also, but दो uses कोई पूछेगा भी नहीं, because O2 is very common which you are studying from 5th 6th class, right? So please copy down. Now let's go to next 2 points of O2. One is the occurrence, where you are going to find it. Free state में सबको मालूम है that 20.98%, right, by volume in air it is being present. तो 21% बोलते हैं हम लोग. So it is in free state, अकेला मिलता है. And in combined state of course it is present in water. Water में कितना percentage होता है by percentage composition you can find out. Earth's crust of course,
इट इज बीइंग प्रेजेंट O2। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम। कोड वर्ड मैंने बताया हुआ है, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा होता है ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम। तो याद रखने का OCl। तो जब मेटलर्जी पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा वापस, बट दिस यू हैव टू रिमेंबर, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अंडर अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन ओनली। टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, अपनी बॉडी में भी होता है। जब हम लोग बॉर्न होते हैं तो अराउंड 70% वाटर होता है हमारी बॉडी में, मतलब ऑक्सीजन भी है, एंड धीरे धीरे 65% के आजू बाजू तो रहता ही है। एंड एवरीवन, ऑल न्यूट्रिशनलिस्ट tells you to drink lots of water, lots of fluids, right? Because water is very very important to detoxify, right? To detoxify your body. So that is present in our body. अब आते हैं इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर, जहाँ पे दो है। पहला वाला कोई पूछेगा नहीं, 7th क्लास का इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर लिया, थोड़ा सा एसिड डाला और इलेक्ट्रोलाइज कर दिया। हाइड्रोजन इज गोइंग टू कलेक्टेड एट कैथोड एंड ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी कलेक्टेड एट एनोड। सबने वोल्टामीटर एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ, ठीक है, वो पूछेगा भी नहीं। दूसरा, फॉर योर एंट्रेंस यू शुड नो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द वन वेयर द डिफरेंस बिटवीन द टू लिक्विड्स इज गोइंग टू बी अराउंड 20 या 20 के नीचे होना चाहिए, तब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन इज हाउ मच, बिकॉज लिक्विड में तो 78 केल्विन, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बोल रहा हूँ। एंड व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ O2, जो अभी किया था, लिक्विफाइज एट व्हाट टेम्परेचर, 90.2 केल्विन। So, who is going to boil down first? Nitrogen is going to boil down first, and who will be left behind? O2 is going to be left behind, which you can use it for different purpose, which I have explained you. Right? So, easy part, वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जिसको नहीं समझ में आएगा वापस देख लो क्या मैंने बोला है, and that is about the occurrence and industrial manufacture. Please copy. Now, let's talk about the preparation of O2 gas. राइट, जनरल मेथड्स एज वेल एज लेबोरेटरी मेथड्स। इंडस्ट्रियल तो मैंने आपको पहले बता दिया दोनों, राइट। लेट्स गो टू द लेबोरेटरी प्रिपरेशन। तो सबसे पहला देखते हैं, फर्स्ट वन इज बाय टेकिंग पोटेशियम क्लोरेट, हीट इट समवेयर 420 केल्विन के आजू बाजू, ये याद रखो। एंड यहाँ पे हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं ब्लैक कलर पाउडर कॉल्ड MnO2। क्या मिलेगा हमको, 2 KCl plus 3 O2। और याद रखना है MnO2 is used so that the temperature earlier, और अगर आप MnO2 यूज नहीं करोगे तो टेम्परेचर will be very high, around 600-700 Kelvin. So to reduce down the temperature, MnO2 is used as a catalyst. दूसरा देखते हैं, now when we are talking about other, दूसरा लेते हैं 2 KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट को अगर मैंने हीट किया तो क्या मिलेगा, पोटेशियम नाइट्राइट प्लस O2। अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जस्ट थोड़ा सा लाइट ही दिया, यू ऑल नो इट डिकम्पोजेस डाउन इनटू 2H2O प्लस O2। अगर मैंने मेटेलिक ऑक्साइड लिया जैसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड, एंड आई एम गोइंग टू हीट, थोड़ा भी डिकम्पोज किया, 2Hg प्लस O2 आई एम गोइंग टू गेट इट, राइट। देन अदर प्रिपरेशंस वी कैन से इज पोटेशियम परमैंगनेट। सो 2 KMnO4, जो भी अकेला होता है उसके आगे 2 डाल दो। इसको हीट किया तो मुझे मिलेगा पोटेशियम मैंगनेट। ये पोटेशियम परमैंगनेट है, ये पोटेशियम मैंगनेट प्लस MnO2 प्लस O2 तो पक्का है। जहां पे भी गैस है वहां पैरों मार देने का, राइट। फिर और एक और प्रिपरेशन देख लेते हैं। वन इज पोटेशियम परक्लोरेट। पोटेशियम परक्लोरेट को अगर मैंने हीट किया तो आई एम गोइंग टू गेट 2 KCl प्लस 4 2 8, सो 4 O2। सो इसको बोलते हैं पोटेशियम परक्लोरेट, क्योंकि बहुत सारे ऑक्सीजन है तो परक्लोरेट। और एक और भी देख लेते हैं, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। सो पोटेशियम डाइक्रोमेट इज गोइंग टू गिव यू व्हाट, K2Cr2O7 is going to give you K2O plus Cr2O3 plus O2. So these are the 7 different ways by which you can prepare O2, और पहला वाला याद रखना is laboratory preparation also. So
दिस आर द 7 डिफरेंट वेज, वैसे बहुत सारे वेज हैं पर हमने 7 मेन लिए हैं जो एंट्रेंस और थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड यहीं से आपको क्वेश्चंस आएंगे, अगर आएंगे तो डायरेक्टली व्हाट हैपेंड व्हेन यू आर गोइंग टू हीट एनी ऑफ देम। अगर आप सब रिएक्शंस को देखोगे सबके सब क्या है, सबके सब कहीं ना कहीं थर्मल डिकम्पोजिशन है, एक ही फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है। सो ऑल यू आर यूजिंग हीट ओनली। इज इट क्लियर? सो प्रिपरेशन आई होप इज क्लियर टू एवरीवन। कॉपी डाउन एंड देन वी विल गो फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज। नाम याद रखो, पोटेशियम क्लोराइड, जिसका केमिस्ट्री स्ट्रांग नहीं है तो नाम के लिए स्ट्रगल करोगे, और जिसको लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री आता है वेरी इजी, पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम मैंगनेट, मैंगनीज डाइऑक्साइड, राइट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परक्लोरेट, एंड दिस इज योर K2O, पोटेशियम ऑक्साइड, एंड दैट इज क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3। तो याद रखो। So these are your 7 different reactions. Let's go to now the chemical properties. Please copy. Now let's talk about chemical properties. अब जहां तक chemical properties की बात है, we all have to know very very easy chemical properties जो आपने 8, 9, 10 में कभी ना कभी पढ़ी होगी, ठीक है? So supports combustion. It does not burn by itself, but everyone knows it supports combustion. Second, it is neutral to litmus. So neither turns blue litmus to red or red litmus to blue. ठीक है? तीसरा रिएक्शंस इसके मेटल्स के साथ देखो। मेटल्स के साथ अगर आप देखोगे तो ग्रुप 1 में जाओ, ग्रुप 1 में सोडियम के साथ रिएक्ट हो गया तो क्या देगा भाई? सोडियम ऑक्साइड देगा। और ज्यादा कर दिया हीट तो सोडियम पेरोक्साइड भी दे सकते हैं। ग्रुप 2 में गए, कैल्शियम अगर O2 के साथ रिएक्ट हो गया तो क्या दे देगा? कैल्शियम ऑक्साइड दे देगा। एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट हो गया तो क्या दे देगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड दे देगा, ठीक है? आयरन के साथ हो गया तो Fe2O3 दे देगा। सो दिस आर सम ऑफ द फेमस रिएक्शंस विद मेटल्स। उसके बाद जाते हैं नॉन मेटल्स में। अब नॉन मेटल्स के साथ अगर O2 रिएक्ट होता है देन व्हाट डिफरेंट रिएक्शंस यू आर गोइंग टू गेट। S के साथ रिएक्ट हो गया तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट ऑन हीटिंग? SO2, ठीक है? कार्बन के साथ हो गया तो O2, तो CO2, ये एक्सेस में होता है। अगर लिमिटेड लोगे, लिमिटेड O2, तो अपने को CO मिलते हैं, सबको मालूम। तो अब नॉन मेटल्स में आपको दिखा रहा हूं। फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट हो गया तो क्या मिलेगा? P2O5, करेक्ट? सो दिस आर द रिएक्शंस विद नॉन मेटल्स। उसके बाद जाते हैं हम लोग 5th वाले में। 5th प्रॉपर्टी है इसकी, दैट इज विथ कंपाउंड्स। अब विथ कंपाउंड्स इसके अलग अलग रिएक्शंस क्या है वो भी देख लेते हैं। विथ कंपाउंड्स को वी आर डिवाइडिंग इट इनटू 5 to 6 पार्ट्स। सबसे पहले लेते हैं 45-46 रिएक्शन। 4NH3 plus 5O2 in the presence of platinum as catalyst at what temperature? 800 degrees Celsius. What we are going to get? We are going to get 4NO plus 6 water. So this is called 45-46 reaction, जो हम लोग बाद में Ostwald's process में भी पढ़ेंगे। So remember this. Any hydrocarbon you take and you heat it along with O2, the answer is always going to be carbon dioxide plus water and plus heat. Reaction is always exothermic, and that's why hydrocarbons used up as a fuel. Large amount of heat is being evolved. So हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन के साथ यही रिएक्शन होता है। कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, एल्कोहल हो, कोई भी। तीसरा रिएक्शन देखते हैं। तीसरा रिएक्शन इज कॉल्ड रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या होता है? मेटलर्जी में भाई जिंक सल्फाइड और O2 को अगर हीट किया तो जिंक ऑक्सीजन लेके जाते हैं एंड सल्फर भी ऑक्सीजन लेके जाते हैं। तो जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व्ड। So this is one of the method to convert sulfide ores into oxide. तो ये भी एक बहुत फेमस रिएक्शन है जो आपको मेटलर्जी में आएगा। Then we go for 4th reaction. देखते हैं अभी 4th reaction क्या है भाई? D reaction देखते हैं। तो D reaction is, so let's see reaction with compounds. When I am talking about reaction with compounds, we all have to know that there are 6
different reactions which we all have to know. सबसे पहला reaction देखते हैं, which is called 45-46 reaction. What is going to happen over here? Ammonia when reacts with oxygen in the presence of platinum 800 degrees Celsius, 800 degrees Celsius, we get nitric oxide plus H2O. जो पहला स्टेप है ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस का. जब पढ़ाऊंगा, ऑलरेडी ग्रुप 15 पढ़ा चुका हूं मैक्सिमम लोगों को, बट यूट्यूब पे बाकी है, तो प्लीज रिमेंबर फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस. Any hydrocarbon, what does that see? Any hydrocarbon when heated in presence of O2, then you get carbon dioxide plus water, and large amount of heat is evolved. That's why hydrocarbons are used as fuels. Third is, any sulfide ore has to be converted into oxide, and the method is called roasting, जो बाद में सिखाऊंगा मेटलर्जी में. बट याद रखो ZnS हुआ, FeS हुआ, PbS हुआ, कोई भी हो, उसको एक्सेस ऑफ O2 में हीट करोगे तो यू गेट जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड. वेरी फेमस रिएक्शन. चौथा वाला इज कॉल्ड डेकॉन्स प्रोसेस, भूलना नहीं है, ग्रुप 17 में पढ़ा चुका हूं. इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन. क्या होने वाला है वहां? कॉन्क HCl को जब आप O2 के साथ रिएक्ट करते हो, somewhere temperature of 700 Kelvin in the presence of CuCl2 as a catalyst, you get chlorine gas and of course water. This is contact process, जो थोड़ी देर टाइम में आएगा लास्ट लेक्चर में, in H2SO4. Here you are going to get sulfur trioxide in the presence of platinum as a catalyst. And last reaction very important, carbon disulfide के साथ अगर O2 react होएगा तो you get two gases, both of them turn lime water milky. Then how do you differentiate them? By passing them through K2Cr2O7. One of them turns orange into green, other does not. कौन सी है? सोचो. 10th class का क्वेश्चन है. So that is about chemical properties of oxygen. Please copy, and then we go for last part, oxides. Now let's go to the last part of oxygen today. So lecture number 2 is going to be over, and that is oxides. Very very important with respect to theory as well as entrance. अब oxides क्या होते हैं? जब भी कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, देन यू गेट अ बाइनरी कंपाउंड. एलिमेंट प्लस O2 इज गोइंग टू गिव यू EOX. ओके, E के साथ ऑफ कोर्स 2 तो लगेगा, O के साथ मैं X लगा रहा हूं तो E2OX. यू कैन कॉल इट, E मीन्स एनी एलिमेंट. एंड आई हैव डिवाइडेड वेरी वेरी इजी फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन, जहां पे सिंपल होते हैं और मिक्स्ड होते हैं. So first you have to remember oxides are divided into two parts, simple oxides and mixed oxides. बहुत सारी बुक्स में mixed oxides नहीं होएगा, बट मैं 3 एग्जांपल्स लिखे. मिक्स्ड ऑक्साइड का पहला एग्जांपल है आपका Pb3O4, जिसको बोलते हैं रेड लेड और ट्राई लेड टेट्रोक्साइड, विच इज मेनली मेड अप ऑफ व्हाट? PbO and PbO2. दूसरा होता है आपका Fe3O4, वेरी सिमिलर टू द अबव वन, ट्राई लेड टेट्रोक्साइड, सबने नाम सुना होगा. ओके, एंड तीसरा वाला भी उसी के जैसा है, Mn3O4. What it is made up of? FeO and Fe2O3, and Mn3O4 is made up of MnO and MnO2. Okay, so when you are talking about mixed oxides, just examples याद रखो, and याद रखो mainly they are made up of 2 oxides in our case. As far as simple is concerned, that is being divided into 2 parts. I have divided metallic and non-metallic. मेटेलिक में 2 पार्ट्स होते हैं, बेसिक एंड एम्फोटेरिक, एंड नॉन मेटेलिक में भी 2 पार्ट्स होते हैं, एसिडिक एंड न्यूट्रल. सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग न्यूट्रल की, क्योंकि न्यूट्रल में ज्यादा टेंशन नहीं है. इट इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट आइदर विद एसिड और बेस इजीली, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है. NO, N2O, CO, याद रखो. दिस आर द 3 फेमस न्यूट्रल ऑक्साइड्स. इज इट क्लियर? नाइट्रिक ऑक्साइड, nitrous oxide which is called laughing gas, and carbon monoxide. अब बेसिक देखते हैं. बेसिक ऑक्साइड्स में आपके कौन कौन से हैं? बेसिक ऑक्साइड्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, सो मेटल्स की है, तो मेटल्स में क्या हो गया? Na2O, और क्या हो सकता है? K2O, और क्या हो सकता है? CaO, और क्या हो सकता है? MgO. These all are called metallic oxides. और इनको आप किसी को भी पानी के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या देंगे? ये Na2O plus H2O gives NaOH, CaO plus H2O gives CaOH twice. एम्फोटेरिक में क्या है? याद रखो कोड वर्ड ZAP तो है ही, SnO2 भी है, ठीक है, SiO2 भी है. So these are some of the famous amphoteric oxide.
जैप याद रखने का। व्हाट इज द कोड वर्ड? जैप। ये तीनों तो मेन है, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड पीबी lead oxide also. So these three are main amphoteric. They can react with acid also and they can react with base also. एसिड के साथ जब रिएक्ट होते हैं तो खुद बेस बन जाते हैं, और बेस के साथ जब रिएक्ट होते हैं तो खुद क्या बन जाते हैं? एसिड। दिखाता हूं आपको। जिंक ऑक्साइड अगर HCl के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या देगा? जिंक क्लोराइड प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर। ये एसिड है तो ये बेस बन गया। अगर जिंक ऑक्साइड रिएक्ट हुआ NaOH के साथ, बेस के साथ, तो एसिड बन जाएगा। इट गिव्स सोडियम जिंकेट एंड विच गैस? हाइड्रोजन गैस इज गोइंग टू बी इवॉल्व। अगर जिंक होता खाली, लेकिन O लिखा है इसलिए वाटर डालो। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एम्फोटेरिक, दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू बिहेव। एसिड के साथ बेस बन जाएंगे, बेस के साथ एसिड बन जाएंगे एंड गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। सो दिस इज कॉल्ड मेनली एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब एसिडिक पे आते। एसिडिक क्या हुई भाई? नॉन मेटल की हुई तो SO2, CO2, फिर P2O5, फिर SO2, फिर SO3। इसको अगर आपने पानी के साथ ऐड किया तो आपको एसिड मिल जाएगी। CO2 प्लस वाटर कार्बोनिक एसिड, P2O5 plus water H3PO4, SO2 plus water H2SO3, SO3 plus water H2SO4. So in all cases what you are getting? You are getting acid, and that is the simple, very simple classification of oxides, right, in my simple diagrammatic form. सबको बहुत easy लगना चाहिए, 10 मिनट में लर्न हो जाना चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ से कुछ ना कुछ एंट्रेंस में और थ्योरी में आता ही है। सो दैट कंप्लीट्स द सेकेंड लेक्चर ऑफ ऑक्सीजन। इन माय नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओजोन। सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर।